are you all? I hope you all are good and happy. So today we are going to begin with the lesson number 3, that is access to MS Access. So let's begin with this lesson here. In this lesson we are going to study about what is database. Then we are going to talk about database management system, that is DBMS. Then we are going to talk about how to get started with MS Access, then how to use template and create tables, how to view tables, how to set a primary key, and how to enter data in a tables. Then we are going to talk about how to add records to a table, adding and deleting fields in a table, how to add or delete a row, and how to sort records. So let's begin. What is our database? What is database? Our database is a collection of related data from which user can efficiently retrieve the desired information. ये क्या होता है? कलेक्शन होता है आपका रिलेटेड डेटा का, जहाँ से यूजर एफिशिएंटली क्या रिट्रीव कर सकता है डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन को. और डेटाबेस कैन बी अ सिंपल कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट डेटा. ये क्या होता है? सिंपल कलेक्शन होता है टेक्स्ट डेटा का इन अ सिंपल टेबुलर फॉर्म टू अ कॉम्प्लेक्स कलेक्शन ऑफ इमेजेस, ऑडियो और वीडियो. नाउ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम. ये क्या होता है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो एनेबल करते हैं यूजर को क्रिएट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए डेटाबेस को, एंड कंट्रोल करता है control all the access of database. The primary goal of database management system is to provide an environment that is both convenient and efficient for user to retrieve and store information. Some popular database management systems of some popular database management systems are like Microsoft SS, Microsoft SQL servers, and MySQL, MongoDB, Oracle DB, IBM DB2, SAP, Sybase, 8, Teradata, Informix, SQLite, etc. So the basic concept behind the DBMS are specification of data type. ये क्या होता है? Specification of data types, the structures and constraints to be considered. Storing the data and manipulating it as required. Store करता है data को, manipulate करता है जैसे भी required होता है. Querying the database to retrieve desired data. Updating the content of the database. ये क्या करता है? Update करता है content आपके database की. Now advantages of using database system. The main advantages of using a database systems are as follows. Minimum data redundancy. Database system stores data at one place. जो database system होता है store करते हैं data को एक place पे in the database. The data is integrated into a single and logical structure. जो data होता है integrate होता है किसमें? single and logical structure में. Different applications refer to the data from the centrally controlled location. जो different application होती है refer करती है data से किससे? Centrally controlled location से. The central storage of data minimize the data redundancy. जो central storage होता है आपका data का, वो minimize करता है किसको? Data redundancy को. Now minimum data inconsistency. So it also helps us to minimize data inconsistency. ये हमें help करता है minimize करने में data inconsistency. Updating data values becoming simple and there is no disagreement. जो update होता है आपका data वो बहुत simple हो गया, कोई disagreement नहीं होता आपकी stored values में. For example, student home address is stored at a single location and gets updated centrally. जो student home address है वो store हो जाता है आपकी single location पर, update हो जाता है centrally. Now improvement in data sharing. डेटा शेयरिंग मीन्स शेयरिंग द सेम डेटा अमंग सेवरल यूजर्स. उसका मतलब होता है कि सेम डेटा को हम सेवरल यूजर्स में शेयर करना. ईच यूजर हैज एक्सेस टू द सेम डेटा. हर यूजर का एक्सेस होता है सेम डेटा पे, तो दे मे यूज इट फॉर डिफरेंट पर्पसेस. तो वो इसे यूज फॉर द डिफरेंट पर्पसेस करिए. द डेटाबेस इज डिजाइन टू सपोर्ट शेयरिंग ऑफ डेटा. डेटाबेस डिजाइन होता है किस लिए? सपोर्ट शेयरिंग ऑफ डेटा के लिए. ऑथराइज यूजर्स आर परमिटेड टू यूज द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस. जो ऑथराइज यूजर होता है परमिटेड होता है डेटा को यूज करने के लिए डेटाबेस से. दे आर प्रोवाइडेड विद व्यूज ऑफ डेटा. किससे प्रोवाइड होता है? व्यूज ऑफ डेटा से फैसिलिटेट करने के लिए इसके यूजर्स को. फॉर एग्जांपल द स्टूडेंट्स होम एड्रेस स्टोर्ड इन द डेटाबेस इज शेयर्ड बाय स्टूडेंट. जो स्टूडेंट का होम एड्रेस जो शेयर्ड होता है डेटाबेस में, वो कौन शेयर करता है? स्टूडेंट. इन्फॉर्मेशन से शेयर सिस्टम में होता है एंड लाइब्रेरी सिस्टम्स में. नाउ इंप्रूवमेंट इन डेटा इंटीग्रिटी. The database contains important information. जो database होता है उसमें क्या होती है? important information होती है and it needs to be protected. उसे हमें protect करना पड़ता है. For this, the database is secured by giving limited access. इससे क्या होता है? जो आपका database होता है secure हो जाता है किससे? limited access से. कि आप कम लोगों को access provide करो of database to authorized users. Access to the database is often controlled by password. जो access होता है आपका database को किससे control कर सकते हो? आप पासवर्ड सेट कर सकते हो. नाउ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डेटा.
Since the data is stored centrally, it is easy to enforce standards on the database. Easy हो गया enforce करने के लिए standards आपके database पे. Standards could include naming conventions. इसमें naming conventions हो सकते हैं, updating, assessing and protecting data. Tools are available for developing and enforcing standards. Tools available हो गए आपके develop करने के लिए, enforce करने के लिए standards को. Now, components of a database. What are the components of a database? Let's learn about some components of a database, that is table. A table is the place where all the information in your database is stored. ऐसा place होता है जहाँ पे आपकी सारी information आपके database के stored होती है in the form of rows. Rows means records and columns means fields के form में होती है. A table structure is created before creating any table. एक table का structure create होता है कोई भी table create करने से पहले. It identifies the name, size and types of various fields identify करता है. By default, each table appears as spreadsheet grid. By default से यार हर table appear होते हैं spreadsheet grid में, जिसे हम क्या कहते हैं, data sheet कहते हैं. You can enter data directly into a data sheet. आप enter कर सकते हो data को directly अपनी data sheet में. Some of the elements of tables are as follows. So first is field. Field refers to a data table in a database with a single form of information. Field किससे refer करते हैं, data table से, जो database में जो किससे होती है, सिंगल फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन होती है. नाउ रिकॉर्ड होता है आपके, दीज आर योर रिकॉर्ड्स. रिकॉर्ड refers to a group of related fields. एक ग्रुप होता है related fields का. For example, an employee's record includes a set of fields about one employee. Set of fields होते हैं एक employee से related. Now they are in form of rows. Rows की फॉर्म में होती है जो present information होती है, all the fields regarding a single person or object. Now data. Data consists of different types of figures. इसमें different types की figures होती है जो display करते हैं regarding different fields of a person or subject. Now forms. Forms are similar to common forms. Forms similar होते हैं common forms से. इसमें क्या होते हैं, containing the fields you create in a data table or for entries. जो आप fields create करते हैं data table के entries के लिए, they are used to make data entry. ये किस लिए use होता है, data entry convenient करने के लिए use होता है. An attractively formatted form is convenient to enter new records. एक attractively formatted form होता है, convenient होता है enter करने के लिए new records को. Now what is queries? Queries enable you to combine data. Queries enable करते combine करने के लिए data multiple related tables into a single data sheet. You can create a query. आप create कर सकते हैं query which is like a saved filter. It saves data. ये data save करता है with some criteria of conditions. Now reports. Reports will represent data from tables and queries. Reports क्या करते हैं, present करते हैं data को table से, queries से in a customizable format with titles, headers, footers, logos and graphics. Now getting started with MS Access. How to get started with MS Access? First क्या करना है, we already know that database is a collection of information. हमें already पता है कि database क्या है, collection है आपके organized information का. Our database management system DBMS helps maintain our database. ये किसमें help करता है, maintain करने में database को. Our relational database management system RDBMS is a subject of DBMS. ये क्या है, DBMS तो RDBMS subject है. Microsoft Access और MS Access is a RDBMS. So Microsoft Access और MS Access क्या है, RDBMS है. And RDBMS is designed for relational database and follow a relational model. ये किस लिए डिजाइन है, relational databases के लिए डिजाइन है और एक relational model follow करते हैं ये, जो इंट्रोड्यूस किए थे EF codename. A key means to differentiate RDBMS. Key means to differentiate RDBMS from DBMS, while RDBMS application store data in table. जो RDBMS होती है ये store करती है data को table में. DBMS application store data as well as files. जो DBMS application है ये क्या करती है, store करती है data को और files को. This means that MS Access can create, modify and maintain database. इसका मतलब होता है MS Access create कर सकता है, modify कर सकता है, maintain कर सकता है database को tables की form में. It can also draw relationship between various databases. ये क्या करता है, relationship draw करता है various databases में and tables पे. Any information retrieved using this particular software will be complete. तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो रिट्रीव होती है यूज करने के लिए पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को, उसको आप कंप्लीट कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो किसी ऑल द डेटाबेसेस से. दिस मेक्स MS Access a popular RDBMS all over the world. Using MS Access you can create tables. MS Access को यूज करके आप टेबल्स क्रिएट कर सकते हो, क्वेरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स एंड कनेक्ट कर सकते हो उनसे विद मैक्रोस.
To start MS Access, follow the given step. First आपको टाइप हेयर सर्च बॉक्स में टाइप करना है MS Access, टाइप करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, प्रेस करना है आपको एंटर की एंड क्लिक कर देना है. Now features of MS Access. What are the features of MS Access? Some of the same features of MS Access are follows. MS Access simplifies large information. ये क्या करता है? Simplify करता है large information so that it can be easily assessed. जिससे आप उनको easily assess कर सकते हो. It lowers the duplication of data. ये क्या करता है? Lower करता है duplication आपके data की. Improve करता है speed, efficiency and flexibility in information retrieval. It secures data, thus it is more reliable. ये secure करता है आपके data को और ज़्यादा reliable भी है. It enable adding data through various data forms. ये क्या करता है? Enable करता है add कर सकते हो आप data various data forms के through. Data entry errors are minimized by using data forms. डेटा एंट्री जो होती है आपकी मिनिमाइज हो जाती है डेटा एंट्री फॉर्म्स को यूज करके. नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एमएस एक्सेस विंडो? फर्स्ट इज टाइटल बार. इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ करंटली ओपन डेटाबेस. क्या बताता है? डिस्प्ले करता है नेम किसका? करंटली ओपन डेटाबेस का. फाइल टैब, इट डिस्प्लेज द बैकस्टेज व्यू. डिस्प्ले करता है बैकस्टेज व्यू ऑफ फाइल कमांड जैसा आपका न्यू एंड ओपन हो गया. नेक्स्ट इज क्विक एसेस टूल बार. इट डिस्प्ले क्विक एसेस बटन से डिस्प्ले करता है क्विक एसेस बटन सेव के लिए, अनडू के लिए एंड रीडू कमांड्स के लिए. तो दिस इज द टाइटल बार, दिस इज द क्विक एसेस टूल बार, दिस इज द फाइल टैब, this is your ribbon area, this is your tab table object. Now this is your navigation pane, this is your work area and this is your status bar. Now let's talk about ribbon. This says group of related commands and tabs. इसमें क्या होता है? group of related commands होते हैं tabs में. Each tab offers shortcut. हर tab क्या करता है? ऑफर करता है shortcut button to common task. Now database object. MS Access database has 4 main objects. इसमें 4 main objects होते हैं आपके tables, queries, forms and reports. These objects are displayed in navigation pane. ये जो objects होते हैं कहाँ डिस्प्ले होता है? आपके navigation pane में डिस्प्ले होता है. Now navigation pane it lists all available database object. ये क्या करता है? आपके सारे available database object को list कर देता है. Status bar it displays information about the current object or view. ये क्या करता है? डिस्प्ले करता है information आपके current object और view से related. Now work area it differ according to database element. ये क्या करता है? differ करता है database element के according which has been selected to work. Now how to create a blank database? Blank database कैसे create करते हैं? A blank database contains only a single blank table. एक blank database में क्या होता है? सिंगल ब्लैंक टेबल होता है. आफ्टर क्रिएटिंग अ ब्लैंक डेटाबेस यू कैन ऐड टेबल्स. आप टेबल्स ऐड कर सकते हो, फॉर्म्स ऐड कर सकते हो, रिपोर्ट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हो. टू क्रिएट अ ब्लैंक डेटाबेस फॉलो द गिवन स्टेप. आपको क्लिक करना है न्यू ऑप्शन पे द फाइल टैब, सेलेक्ट करना है ब्लैंक डेटाबेस को, टाइप करना है नेम ऑफ द डेटाबेस, फाइल नेम बॉक्स में क्लिक करना है क्रिएट पे. आप क्लोजिंग अ डेटाबेस कैसे क्लोज करता है डेटाबेस को? व्हेन वी क्लोज अ डेटाबेस एमएस एक्सेस विंडो रिमेन ओपन. जब हम क्लोज करते हैं तो एमएस एक्सेस की विंडो ओपन ही रहती है. In MS Access, you can open multiple databases. यहाँ पे आप multiple databases को open करते हो same time पे. Closing a database which is not in use frees up your computer's memory. ये क्या करता है? Free up कर देता है आपकी computer memory को. To close a database, follow the given step. आपको click करना है file tab पे, the file menu open हो जाएगा. Then आपको click करना है close database option पे. Now file menu says ऊपर आपको file menu open नहीं रहेगा. New command becomes start selected. जो new command होती है वो आपकी select हो जाएगी. Now using templates to create tables. अब हम templates कैसे यूज करते हैं tables को create करने के लिए? तो templates are pre-designed data. ये क्या होता है? pre-designed data forms होते हैं with various types of tables. इसमें बहुत different types की tables होती है. Follow the given steps to create a table using templates in MS Access. First आपको open करना है MS Access program. Then select करना है आपको new option in file tab. List available templates appear. जो एक लिस्ट होती है available templates की वो appear हो जाएगी आपके राइट साइड ऑफ द स्क्रीन पे. एंड आपको क्लिक करना है सैम्पल templates पे एंड चूज करना है template फ्रॉम द लिस्ट ऑफ डिफरेंट templates. आफ्टर चूजिंग अ template क्लिक करना है आपको क्रिएट पे. दिस विल क्रिएट अ टेबल इन MS Access. ये क्या करता है? क्रिएट करता है टेबल आपके MS Access में. इट फील्ड्स अकॉर्डिंग टू सिलेक्टेड template. सेलेक्ट करना है आपको डेटा शीट व्यू एंड स्टेटस बार. A new window with form tools in title bar appear. जो न्यू विंडो है फॉर्म टूल्स के साथ टाइटल बार में अपीयर हो जाएगी. ना क्लिक करना है आपको ऐड एग्जिस्टिंग फाइल फील्ड पे बटन पे. टूल ग्रुप में एक डेटा शीट टैब. अ फील्ड लिस्ट विल अपीयर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेटा शीट. जो फील्ड लिस्ट होती है अपीयर हो जाएगी आपके राइट साइड में आपके डेटा शीट की. आपको चूज करना है फील्ड फ्रॉम दिस लिस्ट, ड्रैग करना है, ड्रॉप करना है फील्ड को एज पर योर रिक्वायरमेंट. नाउ व्यूज ऑफ अ टेबल.
You have learned to create tables in MS Access. Now let's learn how to work in these tables. अब हम ये सीखेंगे कैसे वर्क करते हैं इन टेबल्स में यूज करके डिफरेंट व्यूज को. MS Access has two views, डिजाइन एंड डेटा शीट व्यू. दो व्यू होता है, डिजाइन हो गया और डेटा शीट व्यू हो गया. Now what is data sheet view? This view allows you to enter and edit the data. ये जो व्यू है अलाउ करता है एंटर करने के लिए, एडिट करने के लिए डेटा को. इट ऑल्सो शो डेटा इन डेटाबेस. ये क्या करता है, शो करता है डेटा को डेटाबेस में. बट अदर देन माइनर चेंजेस फॉर्मेट ऑफ डेटाबेस कैन नॉट बी चेंज. फॉर्मेट होता है डेटाबेस का वो आप चेंज नहीं कर सकते इस व्यू में. यू कैन स्विच बिटवीन व्यूज. आप स्विच कर सकते हो व्यूज के बीच में बाय क्लिकिंग ऑन एनी ऑफ द व्यू बटन. किसी भी एक व्यू बटन पे क्लिक करके जो प्रेजेंट आके बॉटम राइट कॉर्नर में स्टेटस बार में. यू कैन ऑल्सो प्रेस F11 टॉगल की. आप F11 टॉगल की भी प्रेस कर सकते हो कीबोर्ड से डिस्प्ले करने के लिए या फिर हाइड करने के लिए नेविगेशन पेन को. नाउ क्रिएटिंग अ न्यू टेबल इन डेटाशीट व्यू. डेटाशीट व्यू अलाउज यू टू क्रिएट अ टेबल एंड देन ऐड न्यू फील्ड सिंपली बाय टाइपिंग. ये क्या करता है, आपको अलाउ करता है क्रिएट करने के लिए टेबल को. एड करता है न्यू फील्ड सिंपली क्या करके, टाइप करके फील्ड नेम्स को कॉलम हेडिंग प्लेस होल्डर में. डेटाशीट व्यू इज यूज व्हेन यू नीड अ क्विक टेबल. ये किस लिए यूज होता है, जब आपको क्विक टेबल चाहिए होता है कंसिस्टिंग ऑफ जस्ट अ फ्यू फील्ड्स. टू क्रिएट अ टेबल यूजिंग डेटाशीट व्यू फॉलो द गिवन स्टेप. आपको क्लिक करना है क्रिएट टैब पे, देन आपको क्लिक करना है टैब ऑप्शन, टेबल ऑप्शन पे. MS एक्सेस ओपन कर देगा न्यू टेबल को डेटाशीट व्यू में. डबल क्लिक करना आपको कॉलम हेडर पे क्रिएट करने के लिए फील्ड नेम को टाइप करना है आपको नेम फॉर द फील्ड एंड प्रेस करना है एंटर की. फिर आपको क्लिक करना है न्यू नेक्स्ट कॉलम पे. द डेटा टाइप मेन्यू अपीयर हो जाएगा. देन आपको सेलेक्ट करना है डेटा टाइप फॉर द फील्ड. फॉर एग्जांपल सेलेक्ट टेक्स्ट इफ यू वांट टू ऐड नेम टू द फील्ड. अगर आपको नेम ऐड करना है अपनी फील्ड में. Now let's talk about design view. Next one was design view. This view is used to enter field name. ये view किस लिए use होता है, field name enter करने के लिए. Data type, their description and to set properties of the name. ये क्या करता है, set करता है properties आपके names of the field के. Creating a new table in design view. New table कैसे create करते हैं design view में. Design view allows you to create a new table with the exact fields. ये कहता है allow करता है आपको create करने के लिए new table को इससे exact fields के साथ जो आपको चाहिए. In design view, the window is divided into two panes. जो window होती है इसमें क्या होता है, two panes में divided होती है. Top pane for creating field name, specifying field type and field description. Bottom pane for specifying field properties. Bottom pane होता है specify करने के लिए field properties को. When you create a table in design view, you have to indicate the following. आपको indicate करनी होती है कुछ चीजें. Field name. It contains the name or field. इसमें field name आता है. सारी इसमें क्या होता है, फील्ड नेम, फील्ड का नेम होता है. ये रिप्रेजेंट करता है कंटेंट्स ऑफ फील्ड. जैसे आपका नेम हो गया, एड्रेस हो गया, सिटी हो गया. ईच फील्ड नेम कैन हैव नेम दैट कैन नॉट बी एक्सीड 64 कैरेक्टर. हर फील्ड नेम में एक नेम होता है जो 64 कैरेक्टर्स को एक्सीड नहीं कर सकता लेंथ में. डेटा टाइप. इन ईच फील्ड हैज अ डेटा टाइप दैट डिफाइन व्हाट यू कैन स्टोर इन इट. हर फील्ड में एक डेटा टाइप होता है कि उसमें आप क्या स्टोर कर सकते हो. डेटा एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड टू वैलिड एंट्रीज फॉर द टाइप यू चूज. डेटा एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है वैलिड एंट्रीज के टाइप के लिए जो आप चूज करते हो. विच हेल्प्स टू प्रिवेंट डेटा एंट्री एरर्स. जो हेल्प करता है आपको प्रिवेंट करने में डेटा एंट्री एरर्स को. फॉर एग्जाम्पल यू कैन एंटर लेटर इन अ फील्ड सेट. आप एंटर कर सकते हो लेटर में फील्ड सेट में 2 नंबर एंड यू मस्ट एंटर वैलिड डेट. आप वैलिड डेट्स एंटर कर सकते हो फॉर टाइम्स इन अ डेट टाइम field. Some data types are given below like text. अलाउ करता है एंटर करने के लिए अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स फॉर इट हैज लिमिट ऑफ 255 कैरेक्टर्स की. 255 कैरेक्टर्स की लिमिट होती है एंड कैन नॉट बी यूज फॉर न्यूमेरिक कैलकुलेशंस. और इस फॉर न्यूमेरिक कैलकुलेशंस के लिए यूज नहीं कर सकते लाइक ऑर्गेनाइजेशन नेम, टेलीफोन नंबर एंड जिप कोड. नेक्स्ट इज मेमो. इसकी लिमिट होती है 63,999 कैरेक्टर्स की. It is used for detailed and descriptive fields. ये detailed और descriptive fields के लिए यूज होता है. नंबर अलाउ करता है स्टोर. अलाउ स्टोरिंग न्यूमेरिक डेटा दैट यू कैन यूज इन कैलकुलेशन. जो आप कैलकुलेशंस में यूज कर सकते हो. इट कैन होल्ड सिंबल्स सच एज डेसिमल पॉइंट्स एंड कॉमास. डेट टाइम. दिस टाइप ओनली स्टोर नंबर्स. ये टाइप जो स्टोर करता है नंबर को रिप्रेजेंट करता है वैलिड डेट एंड टाइम को. करेंसी स्टोर करता है करेंसी डेटा को दैट यू कैन यूज इन कैलकुलेशंस. जो आप यूज कर सकते हो कैलकुलेशंस में. Auto number allow for storing a sequential number for each record. Yes or no. The value 1 represent yes. जो value 1 है वो represent करता है yes को and value 0 represent करता है no को. But field can be formatted to display values. जो field होती है format हो सकती है display करने के values true, false या फिर yes or no. Next is OLE, object linking and embedding. allow करता है store करने के लिए images and object जो create होती है another application में. जैसा आपका Word हो गया, Excel हो गया, by linking them in a table.
hyperlinks, link to websites, email address, files on computer, files on LAN or virtually any other locations. Lookup results में क्या होता है, डिपेंड करता है on the usage. This type of create and either a lookup list, इसमें या तो lookup list आती है आपके डेटा से या lookup list आती है आपके वैल्यूज से in another table. It can also be used to set up multi value list. ये किस लिए यूज होती है, मल्टी वैल्यू लिस्ट सेटअप करने के लिए. Attachments allow attaching data. ये allow पता attaching data files from word processing programs, spreadsheets, graphic editing programs, and so on. Calculated. This field type is new in MS Access 2010. जो field type में new है आपके MS Access 2010 में. You can use it to create calculated field. आप इसको use कर सकते हो create करने के लिए calculated fields को directly अपने table में. In earlier version, you could create calculated fields. Earlier versions में आप create कर सकते हो calculated fields only in queries. Now description. You can enter a detailed description of field in MS Access. आप detailed description add कर सकते हो field अपनी field का अपनी MS Access में. Now let's learn how to create a new table in design. अब हम सीखेंगे कैसे create कर सकते हैं new table in design view through the given step. First आपको क्या करना है, open करना है database को एंड क्लिक करना है क्रिएट टैब पे, अपने रिबन पे एंड सेलेक्ट करना है टेबल डिजाइन ऑप्शन. इन द फील्ड नेम कॉलम आपको टाइप करना है नेम अपने फर्स्ट फील्ड का. फॉर एग्जांपल आपका स्टूडेंट नेम आ गया, प्रेस करना है. देन आपको टैब की प्रेस करने के बाद आपको अपना कर्सर ले जाना डेटा टाइप पे. अपने टैब की प्रेस करने के बाद आपको अपना कर्सर कहाँ ले जाना है, डेटा टाइप पे ले जाना है. वहां से आपको सेलेक्ट करना है टेक्स्ट. आप क्लिक कर सकते हो ड्रॉप डाउन एरो पे, सेलेक्ट करना आपको वहां से अपना डेटा टाइप जो भी चाहिए अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, टेक्स्ट, मेमो, नंबर, एनीथिंग. एंड यू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर डेटा बाय इट्स प्रॉपर्टीज विल बी डिस्प्लेड इन द लोअर केस. उसकी प्रॉपर्टीज लोअर केस में डिस्प्ले हो जाएंगी. अगेन आपको प्रेस करना है टैब की को मूव करने के लिए कर्सर को डिस्क्रिप्शन कॉलम पे टाइप करना है अपना टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन कॉलम में. सिमिलरली अब आपको क्या करना है, यू कैन फिल अदर. हाँ, आप क्या कर सकते हो फील्ड अपने आप क्या यू कैन फिल अदर फील्ड्स. आप अदर फील्ड्स को फिल कर सकते हो टेबल बाय रिपीटिंग स्टेप 3 एंड 4. 3 और 4 को स्टेप को रिपीट करके आप अदर फील्ड्स भी फिल कर सकते हो. सेटिंग अप प्राइमरी की. अब प्राइमरी की कैसे सेट करते हैं. A primary key is in a RDBMS refers to the field that contains unique value. एक वो field होती है जिसमें हर unique value होती है each record के लिए. It helps to identify a record in a file. क्या इसलिए हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने में रिकॉर्ड एक फाइल में. For example, the data stored in a key field would use student roll number. जो डेटा स्टोर होता है आपकी की फील्ड में उसमें क्या होता है, स्टूडेंट का रोल नंबर आता है एज की फील्ड बिकॉज इट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच स्टूडेंट ऑफ अ क्लास. क्योंकि क्या करता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है ईच स्टूडेंट अपनी क्लास का. ओनली वन प्राइमरी की कैन बी सेट फॉर ईच टेबल. एक ही प्राइमरी की सेट होती है हर टेबल के लिए. दिस की इज यूज टू रिलेट कंटेंट ऑफ अ टेबल विद अदर टेबल. ये की यूज होती है रिलेट करने के लिए कंटेंट एक टेबल से दूसरे टेबल का. Now to set up primary key, follow the given step. First आपको choose करना है field that you want to set as primary key. जिस field को आपको primary key set करना है. Then आपको click करना है primary key option पे, file tab पे. You will see a small key symbol. आपको छोटा सा small key symbol field में दिखेगा. It indicates that primary key is set for the field. के indicate करता है कि primary key set है आपकी field के लिए. The primary key is a toggle key. जो primary key होती है toggle key होती है. तो रिमूव इट सेलेक्ट करना आपको प्राइमरी की फील्ड पर, क्लिक करना है प्राइमरी की ऑप्शन पे. नाउ एंटरिंग डेटा इन अ टेबल. टू एंटर डेटा इन अ टेबल स्विच टू डेटाबेस व्यू. आपको स्विच करना होता है डेटाबेस व्यू पे अपनी डिजाइन व्यू में जाके. आफ्टर डिफाइनिंग फील्ड नेम एंड फॉलो करने हैं कुछ स्टेप्स. फर्स्ट आपको डबल क्लिक करना है टेबल पे ना नेविगेशन पे टू ओपन इट. देन स्टार्ट कर देनी अपनी टाइपिंग डेटा एंड द फील्ड नेम वेयर मल्टीप्लिकेशन साइन अपीयर, जहाँ आपका अपोस्ट्रोफी साइन अपीयर होता है तो एंड प्रेस करना आपको एंटर की को. दिस विल टेक यू टू द नेक्स्ट रिकॉर्ड. आपको नेक्स्ट रिकॉर्ड पे ले जाएगा. यू कैन इंसर्ट एनी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ टेबल. आप कोई भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स अपने टेबल में इंसर्ट कर सकते हो. यू कैन मूव इन अ टेबल बाय प्रेसिंग टैब की. आप मूव कर सकते हो टेबल में प्रेस करके टैब की को और एरो कीज को. रिकॉर्ड नंबर कैन बी व्यूड एट बॉटम ऑफ द स्क्रीन. जो रिकॉर्ड नंबर आप कहाँ व्यू कर सकते हो, स्क्रीन के बॉटम में रिव्यू कर सकते हो इन रिकॉर्ड नेविगेशन बार. नाउ एडिट रिकॉर्ड्स टू अ टेबल. अब टेबल में रिकॉर्ड्स कैसे ऐड करते हैं. MS Access allow you to add more records to an existing table. ये आपको अलाउ करता है ऐड करने के more records अपने आपके existing टेबल में. Follow the given steps to add records. आपको क्लिक करना है न्यू ऑप्शन पे, रिकॉर्ड ग्रुप ऑफ होम टैब. दिस विल क्रिएट अ न्यू रिकॉर्ड. ये क्या करेगा, क्रिएट कर देगा न्यू रिकॉर्ड को. या फिर आप क्या कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड बटन पे ऑन रिकॉर्ड नेविगेशन बार जो प्रेजेंट आके बॉटम ऑफ MS Access स्क्रीन देंगे.
एडिटिंग ऑफ रिकॉर्ड्स कैन बी डन बाय क्लिकिंग ऑन अ पर्टिकुलर सेल। जो आप एडिट करते हो अपने रिकॉर्ड्स को कैसे कर सकते हो, एक पर्टिकुलर सेल पे क्लिक करना है, आपको टाइप करनी है इन्फॉर्मेशन अपनी फील्ड में, इससे आप एडिटिंग कर सकते हो। नाउ एडिंग एंड डिलीटिंग फील्ड्स इन अ टेबल। आप फील्ड्स कैसे ऐड करते हो और डिलीट करते हैं। आपको टू ऐड अ फील्ड नेम इन अ टेबल फॉलो द गिवन स्टेप। आपका क्या करना है, फील्ड नेम पे जाना है, वेयर द न्यू फील्ड इज टू बी एडिट, जहाँ पे आपको न्यू फील्ड ऐड करनी है, राइट क्लिक कर देना है, सेलेक्ट करना है इंसर्ट फील्ड ऑप्शन को फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू, दिस विल ऐड अ न्यू फील्ड। ये क्या करेगा, न्यू फील्ड ऐड करेगा। फॉर डिलीटिंग अ फील्ड इन अ टेबल यू कैन सेलेक्ट डिलीट फील्ड फ्रॉम द मेन मेन्यू। आप सेलेक्ट कर सकते हो डिलीट फील्ड को अपने मेन मेन्यू से, या फिर आप क्या कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो डिलीट ऑप्शन पे इन रिकॉर्ड ग्रुप ऑफ होम टैब आफ्टर सेलेक्टिंग द फील्ड नेम you want to delete. The field will be deleted when you click on yes in the Microsoft Access window. Now adding and deleting a row. अब कैसे ऐड कर डिलीट करते हैं रो को। To add a row in the table, follow the given step. आपको क्लिक करना है व्यू बटन के होम टैब पे, सिलेक्ट करना है डिजाइन व्यू को, देन क्लिक करना है इंसर्ट रोज ऑप्शन पे इन द टूल ग्रुप ऑफ डिजाइन टैब। आफ्टर दैट a row, एक आपके सामने एक रो अपीयर होगी, इंसर्ट करना है। A row will be inserted wherever you intend to place it. आप रो इंसर्ट कर सकते हो जहाँ भी आपको चाहिए, जहाँ भी आप उसको प्लेस करते हो। सपोज यहाँ पे एक रो ऐड हो गई है, to delete a row from a table in design view। आप डिलीट कैसे करते हैं रो को टेबल में डिजाइन व्यू में से, फॉलो द गिवन स्टेप्स। आपको क्या करना है, रो पे जाना है विच यू वांट टू रिमूव, जो आपको रिमूव करनी है, एंड क्लिक करना है, प्रेस करना है कर्सर एंड सेलेक्ट कर देना है। देन सेलेक्ट करना है डिलीट रोज को इन टूल्स ग्रुप एंड ऑफ डिजाइन टैब। द रो विल बी डिलीटेड फ्रॉम द टेबल। जो रो होगी वो डिलीट हो जाएगी आपके टेबल से। नाउ सॉर्टिंग रिकॉर्ड्स। अब रिकॉर्ड सॉर्ट कैसे करते हैं, इन एमएस एक्सेल वी कैन रिकॉर्ड सॉर्ट रिकॉर्ड्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। असेंडिंग में भी कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्ट कर सकते हैं। यू कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ रिकॉर्ड्स। अब ऑर्डर ऑफ रिकॉर्ड्स चेंज कर सकते हो टेबल में। दिस कैन हेल्प यू फाइंड, ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज डाटा। ये आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा फाइंड करने में, एनालाइज करने में, ऑर्गेनाइज करने में डेटा को। टू सॉर्ट द रिकॉर्ड फॉलो द गिवन स्टेप। फर्स्ट आपको ओपन करना है टेबल इन विच यू वांट टू सॉर्ट रिकॉर्ड्स। जिस टेबल में आपको रिकॉर्ड सॉर्ट करना है वो ओपन करना है। देन क्लिक करना है कॉलम हेडर पे ऑफ फील्ड दैट यू वांट टू सॉर्ट। देन क्लिक करना है होम टैब पे, क्लिक करना है आपको, इधर आप सॉर्ट ऑप्शन से भी क्लिक कर सकते हो। देन आप क्लिक करना है आपको असेंडिंग पे सॉर्ट करने के लिए, असेंडिंग वाले पे क्लिक कर देना, तो सॉर्ट द रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको डिसेंडिंग में क्लिक करना है, अगर डिसेंडिंग में सॉर्ट करना है देन आपको क्लिक करना है डिसेंडिंग पे टू सॉर्ट द ऑर्डर रिकॉर्ड्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। द रिकॉर्ड्स विल अपीयर इन द न्यू ऑर्डर। जो रिकॉर्ड्स होंगे वो न्यू ऑर्डर में अपीयर हो जाएंगे। So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a good day.